Good morning, students. Today we are going to start a new chapter in political science, and this chapter is about international organizations. And in the international organizations, the most important, of course, is United Nations. So that is what we will be studying in this chapter. This is chapter 6, international organizations. In this chapter, we shall discuss the role of international organizations after the collapse of the Soviet Union. We shall examine how in this emerging world, so we are basically going to understand the functioning of these international organizations, how effective they are. And because this scenario changed after the collapse of Soviet Union, only America remains as the only superpower, okay, and if there is only one superpower, and what will be the role of these international organizations now? Because previously, after the Second World War, United Nations was considered very important, and it played a good role in obviously negotiating a lot of things. But it's especially after the role of United Nations is questionable, उस पर doubts है, only after the collapse of Soviet Union. In today's context, we are seeing कि इसका वो रोल नहीं है जो पहले था. But yes, there are a lot of international organizations जो कि effective हैं and उनकी ज़रूरत है. They are important and what purpose they are serving वो इस chapter में है. So international organizations to cope with various new challenges, including the rise of US power. And इसमें challenges क्या है? That the United Nations had not approved the invasion of Iraq, but America still did it. Okay, so those are the kind of challenges we will see. We then turn to India's involvement with the United Nations and its view of Security Council reform. जो कि इंडिया हमेशा कहते आया है कि Security Council में ये जो 5 permanent members हैं, ये बहुत कम है, ये बहुत पुराना डेवलपमेंट है, एंड आज के कंटेक्स्ट में इंटरनेशनल सीन तो बाकी कंट्रीज भी हैं, दे शुड बी पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. उनमें और कंट्रीज को भी इसका हिस्सा होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल का. एंड इंडिया का मानना है कि दे शुड बी एटलीस्ट 5 more कंट्रीज. ऑफ कोर्स इंडिया सेज कि इंडिया का इसमें होना ज़रूरी है. प्लस वी ऑल्सो एडवोकेट अदर कंट्रीज. Out of them are Brazil and Argentina, few of them. Okay. So why international organization की ज़रूरत क्या है? Every country has got its own government. कोई भी प्रॉब्लम है तो वो की गवर्नमेंट देखेंगी. तो international organization की ज़रूरत क्या है? Both the cartoons comment on the ineffectiveness of the United Nations organization. तो पहले United Nations के ऊपर ये जो कार्टून्स हैं, I can't obviously put them here. So it's on page number 82. And this is very important. ये 2006 का है जब इज़राइल ने लेबनान पर इन्वेड किया था. ओके, इवन प्रेजेंट विल बी सीइंग कि इज़राइल एंड पैलेस्टीन के बीच में जो गाज़ा स्ट्रिप है उसमें कन्फ्लिक्ट चल रहा है. पैलेस्टीनियंस दे हैड मेड अ टनल, 15 किलोमीटर टनल बना रखा था उन्होंने. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू. मिडिल ईस्ट को समझने के लिए इज़राइल को हमेशा समझना होगा, उसके आसपास के एरियाज़ को समझना होगा, उनके और बाकी जो मुस्लिम वर्ल्ड्स हैं, ज्यूज़ एंड ये मुस्लिम वर्ल्ड, इनके डिफरेंसेस और इनके बीच में क्या इश्यूज़ हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है. यू कैन नॉट लर्न ऑब्वियसली वो इंटरनेशनल जब भी अफेयर्स के बारे में पढ़ोगे, ओके, दिस पार्ट रियली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. इवन इफ यू वॉच न्यूज़ these days, you will see that Israel is carrying out raids in the Palestinian region. वो गाज़ा स्ट्रिप क्या है, गोलान हाइट्स क्या है, वेस्ट बैंक्स क्या है, these are important issues. Okay, and here Lebanon, ये पहले भी इनके और Israel is a place which is surrounded by Muslim countries and they have had issues with almost all of them. तो ऐसा ही एक इनके साथ इशू हुआ था लेबनान के साथ. ओके, सो this is in 2006. Now in the first cartoon you will see that the United Nations logo is lying there. During June 2006, Israel attacked Lebanon.
saying that it was necessary to control the militant group called Hezbollah. Now, Hezbollah is a militant group, ये लेबनान है, a very dangerous group. तो उसे कंट्रोल करने के लिए इजराइल ने अटैक कर दिया लेबनान में कि इनका एक मिलिटेंट ग्रुप है और उसको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है, तो उन्होंने अटैक कर दिया. नाउ अ कंट्री अटैक अनदर कंट्री. ओके, लार्ज नंबर्स ऑफ सिविलियंस वर किल्ड, इसमें बहुत आम लोगों की जाने गई, एंड मेनी पब्लिक बिल्डिंग्स एंड इवन रेसिडेंशियल एरियाज केम अंडर इजरायली बॉम्बार्डमेंट्स. बॉम्बार्डमेंट होगा तो फिर ऑब्वियसली उसमें कई निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे. यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया ऑन दिस ओनली इन अगस्त. तो ये इशू शुरू होता है जून में, एंड दे डिड नॉट पास अ रेजोल्यूशन, एंड रेजोल्यूशन पास होता है इन द मंथ ऑफ अगस्त. एंड इजराइल आर्मी विड्रू फ्रॉम दिस रीजन ओनली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. सो बेसिकली से वी आर सीइंग दैट यूनाइटेड नेशन फेल्ड, उन्होंने कुछ किया ही नहीं. एंड व्हाई दे डिड नॉट डू इट? बिकॉज अमेरिका सपोर्ट्स इजराइल. ओके, इस अक्सर हम देखते हैं कि इजराइल के पीछे अमेरिका का हाथ होता है, क्योंकि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा था. दैट इज व्हाई यूनाइटेड नेशंस couldn't do much. Okay, the United Nations they passed a resolution. उन्होंने अगस्त में रेजोल्यूशन पास किया. तो पहले तो रेजोल्यूशन ही बहुत लेट आया. जब रेजोल्यूशन आ भी गया अगस्त में, तब भी हम देखते हैं कि इजराइल दे विड्रू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. Now this is a clear case of ineffectiveness of United Nations. उसकी ज़रूरत क्या है जब उसका कोई सुन ही नहीं रहा है, तो उसके रेजोल्यूशन ही इतना लेट आता भी है, तब भी उसका कोई मतलब नहीं है. Okay, so on the one hand we also find that the UN is generally regarded as the most important international organization in today's world. अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशंस सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल. It is indispensable and represent the great hope of humanity for peace and progress. कहा जाता है कि ये indispensable है, इसके बिना दुनिया नहीं चल सकती. ओके, नाउ यहाँ पर अलग अलग लोगों का मानना, ये यूनाइटेड नेशंस के सेकेंड सेक्रेटरी जनरल जो थे उनका कहना है that the United Nations was not created to take humanity to heaven. Okay, बट टू सेव इट फ्रॉम हेल. तो बुरे समय में काम आने वाली ये संस्था है, एंड जब किसी वॉर को प्रिवेंट करना हो या कुछ हो, तब ऑब्वियसली इसकी अहमियत है. एंड अनदर कमेंट इज अबाउट शशि थरूर. ये कांग्रेस के एक एमपी हैं, केरला से हैं, एंड ही वाज वंस एंड फॉर्मर यूएन अंडर सेक्रेटरी थे, ये जनरल फॉर कम्युनिकेशंस एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन. तो इन्होंने काम किया है यूनाइटेड नेशंस में, एंड ही हेल्ड अ वेरी हाई पोस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन थे ये. एंड इनका कहना था that this is a talking shop. Yes, there are a lot of speeches and meetings at the United Nations. सब लोग आते हैं, अपनी बात कहते हैं, especially during the annual session of the General Assembly. Now, General Assembly इसके कई सारे organizations हैं. I'll stop here a bit and explain कि इसके दो main जो organization है, एक तो General Assembly है. Every country who is member of the United Nations is part of the General Assembly. So basically 1945 में after Second World War, ये सब जानते हो establish हुआ था United Nations. 51 nations had signed the charter. तो initially United Nations 1945 में जब establish हुई, तो 51 nations ने उस चार्टर को साइन किया था. ये उनकी और ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बारे में पढ़ेंगे. दिस इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दिस इज ह्यूमन राइट्स कमीशन, ओके, एंड यूनिसेफ इज फॉर चाइल्ड, यूनेस्को इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज एंड ऑल. ओके, इसका ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड नेशंस का टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट. ये मेन ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए इसको बनाया गया था. एंड ऑफ कोर्स टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स. स्टेट्स के बीच में, स्टेट से मींस कंट्रीज, कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन हो सके, इसलिए इसको एस्टैब्लिश किया गया है. एंड वॉर को प्रिवेंट किया जा सके, कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट किया जा सके, वो था मेन पर्पस यूनाइटेड नेशंस को इस्टेब्लिश करने का. तो 45 में जब इस्टेब्लिश हुआ, देयर वर 51 नेशंस, एंड 2011 में वी आर सीइंग दैट ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज 193 इसके मेंबर्स हैं. ओके,
Now I was talking about this statement by शशि थरूर, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के बारे में कहा था। चर्चिल इसमें उन्होंने विंस्टन चर्चिल के कमेंट का जिक्र किया है। विंस्टन चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यूके के प्राइम मिनिस्टर थे एंड उन्होंने कहा था जॉर्जो इज बेटर देन वॉर वॉर। तब एक दूसरे से वर्बली लड़ना वो बेटर है बजाय इसके कि आप वॉर करें। तो अगर एक दूसरे को कहा सुनी हो कि अगर मामला सुलझाया जा सकता है तो दैट इज बेटर रादर देन एक्चुअल वॉर। सो जॉर्जो इज बेटर देन वॉर वॉर, ये चर्चिल का फेमस कमेंट है। Isn't it better to have one place where all countries in the world can get together? तो शशि थरूर फर्दर ऐड करते हैं कि ये बहुत एक अच्छी जगह है जहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को बोर करते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं एंड बोर होल्स इनटू ईच अदर ऑन दी बैटलफील्ड। जो ही सेज एक दूसरे को बातों से बोर करना बेटर है बजाय इसके कि बैटलफील्ड में एक दूसरे को घायल करें। ओके, तो सेम थिंग व्हाट चर्चिल हैज सेड, ये शशि थरूर का कमेंट है। सो वी आर सेइंग दैट इट इज इम्पोर्टेंट, द ओनली क्वेश्चन इज how important is the United Nations in today's context. These two quotes suggest something important. International organizations are not the answer to everything. तो ये कोई नहीं मानता कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे एंड हर प्रॉब्लम को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प विद मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। They also help countries cooperate to make better living conditions for us all। ये जो ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड नेशंस का, कंट्रीज उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे। दैट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट दे मस्ट गो टू वॉर। बातचीत करके भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। दे कैन इंस्टेड डिस्कस कंटेशियस इश्यूज एंड फाइंड पीसफुल सॉल्यूशन। तो दो ही तरीके हैं, या तो बैठ के बात करो या फिर लड़ाई लड़ो एंड फिर सॉल्यूशन निकालो, लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान आर डूइंग। ओके, indeed even though this is rarely noticed, most conflicts and differences are resolved without going to war। and जब प्रॉब्लम सॉल्व होता है, प्रॉब्लम्स what is being said is that most of the problems in the world are not solved through war। बातचीत के जरिए ही प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। The role of an international organization can be important in this context। जब बातचीत के जरिए अगर प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का होना ज़रूरी है जहाँ पर बाकी कंट्रीज को मौका मिले, एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर वो बातचीत कर सकें। तो एक मीडिएटर का होना ज़रूरी है एंड यूनाइटेड नेशंस वो मीडिएटर की तरह काम करता है। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक सुपर स्टेट की तरह नहीं है, ये कंट्रीज के ऊपर कोई एक सुपर कंट्री नहीं है। ओके, इट इज़ क्रिएटेड बाय एंड रिस्पॉन्स टू स्टेट्स। तो सब नेशंस ने मिलकर इसको क्रिएट किया है और सब नेशंस ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देयर आर इश्यूज दैट आर सो चैलेंजिंग दैट दे कैन ओनली बी डेल्ट विद व्हेन एवरीवन वर्क्स टुगेदर। इसकी अहमियत सबसे ज़्यादा तब हो जाती है जब कोई ऐसा इशू हो जो कि कोई अकेले कंट्री सॉल्व नहीं कर सके। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत अच्छा इशू है इस कंटेक्स्ट में, जहाँ पर नो सिंगल कंट्री कैन सिंगल हैंडेडली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर कोई एक कंट्री पॉल्यूट नहीं कर रही है, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशंस को नहीं बढ़ा रहे हैं, उन्होंने अपने यहाँ पर पेड़ लगाए हुए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया हुआ है, दैट डज नॉट मीन कि उस कंट्री के करने से एक जो बड़ा प्रॉब्लम है, लार्जर प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग का, वो सॉल्व हो जाएगा। Lot of countries have to come together. Everyone has to come together to solve a problem like global warming. Now here is also a mention about disease कि जब कोई डिजीज़ हो जो कि बहुत एरिया में फैली हो, जैसे कि अभी है कोरोना वायरस, तो इस चीज़ को इरेडिकेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट states, different countries is required and इसमें यूनाइटेड नेशंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। यूनाइटेड नेशंस का अपना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है which is called वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, and every now and then you must be hearing in the news
कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डायरेक्शन दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रेडिक्टेड द सेकेंड वेव और द थर्ड वेव, एंड ये जो डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे हैं, ये जो रिपोर्ट्स इंटरनेशनल सीन पर इसके जो हमें मिलते हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मिलते हैं। तो जब कोई प्रॉब्लम इतना लार्ज हो जिसमें कि एक नहीं कई कंट्रीज इनफैक्ट द वर्ल्ड पूरा इन्वॉल्व हो, तब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो फिर कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। एंड इसमें इन्हीं दोनों का एग्जाम्पल है, डिजीज इज एन एग्जाम्पल। सम डिजीजेज कैन ओनली बी इरेडिकेटेड इफ एवरीवन इन द वर्ल्ड कोऑपरेट्स इन इनकुलेटिंग और वैक्सीनेटिंग देयर पॉपुलेशन। ये जो लिखा गया था तो ऑब्वियसली they were not aware about coronavirus. Here basically they mean यहाँ पर पोलियो वगैरह के रेफरेंस में इसको लिखा गया है। और take global warming and its effects. As temperatures rise because of the increase in greenhouse gases in the atmosphere, there is danger that sea levels will rise. यही है global warming. Thereby submerging many coastal countries. और कई coastal countries Maldives पूरा देश ही खत्म हो जाएगा। ओके, तो कई कोस्टल एरियाज वर्ल्ड के जो ह्यूज सिटीज़ हैं जो कि समुद्र के किनारे बसे हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, वो डूब जाएंगे। ओके, तो इसलिए ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इट इज़ नेसेसरी दैट डिफरेंट कंट्रीज कोऑपरेट, एंड फॉर दैट दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दे बिकम इम्पोर्टेंट। मोस्ट ऑफ दिस इज जनरल, यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, अनफॉर्चुनेटली रिकग्नाइजिंग द नीड फॉर कोऑपरेशन एंड एक्चुअली कोऑपरेटिंग ये बहुत अलग चीज़ है। ज़रूरत तो है कोऑपरेट करने की, लेकिन क्या हम कोऑपरेट करते हैं? ओके, सो नीड फॉर कोऑपरेशन एंड एक्चुअल कोऑपरेटिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। नेशंस कैन रिकग्नाइज द नीड टू कोऑपरेट बट कैन नॉट ऑलवेज एग्री हाउ बेस्ट टू डू इट। लेकिन इसको करें कैसे? इस कोऑपरेशन के क्या रूल्स होने चाहिए, कैसे कोऑपरेशन होना चाहिए, ये an international organization can help produce information and ideas about how to cooperate. So if countries want to cooperate, then international organizations become an important tool. वो एक important platform बन जाते हैं जहाँ पर international these different countries they can cooperate. तो अगर global warming को कम करना है, सारे countries को involve करके कोई एजेंडा चलाना है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस हर कंट्री में कम करने हैं, then an international organization will be very important. Okay, it can provide mechanism, rules and bureaucracy to help members have more confidence that cost will be shared properly. कोई भी अगर एक काम है जो कि कई लोग मिलकर कर रहे हैं, then everyone obviously is concerned कि इसका कॉस्ट कौन बेयर करेगा, इसका खर्चा कौन देगा, कितना देगा। तो those things can be worked out. Okay, evolution of United Nations. यूनाइटेड नेशंस से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस। यू मस्ट रिमेंबर यूनाइटेड नेशंस पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उससे पहले लीग ऑफ नेशंस था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी। इनफैक्ट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसको बनाया गया था, बट इट फेल्ड। तो उसका काम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर को प्रिवेंट करना, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। एंड देन यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ, एंड यूनाइटेड नेशंस का काम था, इनफैक्ट द मेन जॉब ऑफ यूनाइटेड नेशंस देन वाज टू प्रिवेंट द थर्ड वर्ल्ड वॉर। अगर हम उस तरह से देखें, एंड दे हैव सक्सीडेड अ बिट। ओके, तो वहाँ उनको सक्सेस एक तरीके से वो सक्सीड हो चुके हैं, बिकॉज देयर हैव बीन नो थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये यूनाइटेड नेशंस का पूरा सिस्टम बताया गया है, प्रिंसिपल्स के जो ऑर्गन्स हैं वो उसमें है। Now, the organization was set up through the signing of the United Nations Charter by 51 states. उसका objective है ये prevent international conflict and facilitate cooperation. 2011 में हम देखते हैं United Nations के 193 members हो गए, and इसकी जो मेन बॉडी है वो है जनरल बॉडी, जो दूसरी बॉडी है वो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। नाउ वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, ये सारे मैटर सिक्योरिटी काउंसिल के पास ही जाते हैं, एंड सिक्योरिटी काउंसिल का ये जॉब है टू सॉल्व दीज मैटर्स। नाउ सिक्योरिटी काउंसिल में केवल 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, एंड ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। सो दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स, एंड इसी में रिफॉर्म की बात हो रही है।
यही क्यों परमानेंट मेंबर्स बने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यही इंपॉर्टेंट कंट्रीज उस समय थे, तो इन्हें ही परमानेंट मेंबर्स बनाया गया। ओके, यूनाइटेड नेशन का मोस्ट विजिबल फेस उसका सेक्रेटरी जनरल होता है। द यूनाइटेड नेशन कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड एजेंसीज, उसमें ये इम्पॉर्टेंट है इनके स्ट्रक्चर्स में। एंड इसकी जो मेन बॉडी है जहाँ पे हर मेंबर स्टेट प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, एंड वहाँ पे वॉर एंड पीस एंड बाकी कोई भी एनी इशू कैन कम अप इन दिस डिस्कशन। ये जनरल असेंबली के जो एनुअल सेशन होता है, साल में एक बार होता है, जब सभी लोग आते हैं हर देश से और यहाँ पर अपनी अपनी बात रखते हैं। ओके, तो ये जनरल असेंबली में होता है, एज वेल एज सिक्योरिटी काउंसिल में ये वॉर कॉन्फ्लिक्ट ये सारे जो मामले हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल में जाते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज उसे डील करते हैं कई बाकी ऑर्गेनाइजेशंस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड यू लर्न अबाउट यूएनडीपी की उनका क्या काम है, हर देश के डेवलपमेंट को देखना, वो सब उनका काम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, एक तो हर कंट्री ने, हर डेमोक्रेटिक कंट्री ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने लोगों को अधिकार दिए हुए हैं। हमें हमारे पास है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस राइट्स, वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे पास है। ओके, बट एज अ ह्यूमन बीइंग इंडिया में है, बट अगर किसी कंट्री में नहीं है, वहाँ कोई डिक्टेटर है और वहाँ पर उन लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो फिर क्या कुछ नहीं हो सकता उन लोगों के लिए? हु विल प्रोटेक्ट देम? एंड इसके लिए ये काम करते हैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। ओके, ये दिस वर्क इज टेकन अप बाय यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। नाउ एंड देन वी सी कि चाइना में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है, ये लोग कई इंसिडेंट्स को बताते हैं कई बार। ओके, तो ये यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कई बार चाइना को कई काम के लिए बोला है कि आपके यहाँ पर लोगों के जो राइट्स हैं, ओके, ये फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। एज ए ह्यूमन बीइंग हर इंसान के अपने अधिकार हैं, अपने राइट्स हैं, चाहे वो किसी भी देश का हो, और उस नाते ये काम है UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, कि वो देखे कि पूरी दुनिया में जहाँ पर भी इंसान है, जहाँ पर भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनको बेसिक राइट्स एक ह्यूमन बींग होने के नाते उन्हें मिलने चाहिए, उनको वो सिक्योर करे। ये काम है UNHRC का। ओके, फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। ये यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, एंड बिकॉज वर्ल्ड ओवर हमेशा रिफ्यूजी का प्रॉब्लम्स होता है, किसी कंट्री में कोई वॉर है या कोई और नेचुरल कैलेमिटी है, वहाँ से लोग दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, दे बिकम रिफ्यूजीज। ओके, वी सॉ प्रॉब्लम्स इन सीरिया, सीरिया से लोग they moved towards Europe, they became refugees there। तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये काम है UNHCR, which is United Nations High Commission for Refugees। And then there is an organization which works for the children, and that is UNICEF, United Nations Children's Fund। Okay, ये है यूनिसेफ। फिर यूनाइटेड नेशंस का वन मोर इम्पॉर्टेंट इज एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये, और ये कहलाती है यूनेस्को। ये दुनिया में जो डिफरेंट साइट्स हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, उनको ये देखते हैं। बाकी इनके कल्चर को लेके एजुकेशन के फील्ड में यूनेस्को का काम होता है। रिफॉर्म ऑफ द UN आफ्टर द कोल्ड वॉर, क्या ये रिफॉर्म ज़रूरी है कि रिफॉर्म होना चाहिए? मैनी कंट्रीज से कि ये रिफॉर्म नेसेसरी है आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। रिफॉर्म एंड इम्प्रूवमेंट आर फंडामेंटल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत पुरानी हो चुकी है, 1945 में इस्टेब्लिश थी, तो इसमें कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। द यूनाइटेड नेशंस इज नो एक्सेप्शन। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन डिमांड्स फॉर रिफॉर्म इन द वर्ल्ड बॉडी। However, there is little clarity and consensus on the nature of reform। रिफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इस पर अभी कंसेंसस, आम राय अलग अलग देशों के बीच में नहीं बन पाई है कि यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म किए जाए तो कौन से किए जाए, कैसे किए जाए।
इस पर अभी कुछ ज़्यादा आम राय नहीं बन पाई है। 2 बेसिक काइंड्स ऑफ रिफॉर्म फेस द यूनाइटेड नेशन, लेकिन 2 बेसिक रिफॉर्म्स की बात हो रही है। इससे रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें रिफॉर्म होना चाहिए, एंड उसके प्रोसेस की कैसे काम करती है, एंड अ रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। की यूनाइटेड नेशंस के जुरिसडिक्शन क्या होता है? जुरिसडिक्शन होता है दायरा, कि ये मेरे दायरे में आता है या नहीं है। जैसे पार्लियामेंट का जुरिसडिक्शन क्या है? उनका जुरिसडिक्शन है कानून बनाना। जुडिशरी का क्या है? न्याय करना। ओके, तो सबके अपने दायरे हैं, अपना जुरिसडिक्शन है। ऐसे ही यूनाइटेड नेशंस के जुरिसडिक्शन में क्या क्या आना चाहिए, कौन कौन से इश्यूज हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के दायरे में आने चाहिए। ओके, ऑलमोस्ट एवरीवन इज एग्रीड दैट बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ, ये दोनों ही रिफॉर्म जरूरी है, इसके स्ट्रक्चर में भी एंड इसके जुरिसडिक्शन में भी। व्हाट दे कैन नॉट एग्री ऑन इज प्रिसाइसली व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड व्हेन इट इज टू बी डन। तो सभी का मानना है कि ये दोनों ही रिफॉर्म जरूरी है, लेकिन ये कब होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इस पर अभी कंसेंसस आम राय नहीं बन पाई है। ऑन द रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, ये माना जाता है कि सबसे बिगेस्ट रिफॉर्म जो कि यूनाइटेड नेशंस में ज़रूरत है, दैट रिफॉर्म हैज़ टू कम इन द सिक्योरिटी काउंसिल वेयर ओनली दीज 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और इनके पास वीटो पावर है। एक तो बात होती है इनके वीटो पावर हटाने की, दूसरी बात होती है नए मेंबर्स को ऐड करने की। द डिमांड फॉर एन इंक्रीज इन द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल्स परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स दे आर अपॉइंटेड फॉर 2 years। 2 years के बाद बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स आ जाते हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस? नॉन परमानेंट मेंबर्स डू नॉट हैव द वीटो पावर, तो वो है वहाँ पर बट उनके पास ज़्यादा पावर है नहीं। ओके, रिलेटेड टू दिस हैज़ बीन द डिमांड फॉर एन इंक्रीज, इसी सिक्योरिटी काउंसिल के इसी में बदलाव करने की बात हो रही है कि ये 5 मेंबर को बढ़ाया जाए, प्लस जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उसको भी इसमें और इंक्लूड किए जाए। इन पर्टिकुलरली देयर आर प्रपोजल्स टू इंक्रीज मेंबरशिप फ्रॉम एशिया, एशिया में केवल चाइना है वहाँ पर, तो यहाँ की मेंबरशिप बढ़ाने की बात हो रही है। अफ्रीका इज नो वन, साउथ अमेरिकन पूरे कॉन्टिनेंट से कोई नहीं है, एंड बियॉन्ड दिस द यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज वांट इम्प्रूवमेंट्स in the United Nations budgetary procedures and its administration। Obviously जो rich countries हैं उनका कहना है कि they are giving lot of money to United Nations, तो इसका जो बजट है, पैसा है, कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा। अभी हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस बहुत, अमेरिका बहुत खर्च करता है, जापान बहुत खर्च करता है, इसमें कोई इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं है फ्रॉम ऑल कंट्रीज। On the issues to be given greater priority is to be brought within the jurisdiction of the UN. Some countries and experts want the organization to play a greater or more effective role in peace and security missions. These are simple things, and इसके दोनों ही reforms में के details में हम देखेंगे। The United Nations was established in 1945, पुरानी बात हो गई है, तो इसमें reform होना जरूरी है। And after the Cold War, those realities are different. Here are some of the changes that have occurred. Now this part I will be taking in the second class. This is now important part. कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बनी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से 1991 ये कोल्ड वॉर का फेज है, बट कोल्ड वॉर के बाद बहुत कुछ बदला है इंटरनेशनल सीन में, एंड वहाँ पर डिमांड है कि यूनाइटेड नेशंस का ये जो पुराना स्ट्रक्चर है, ये सब ये बॉडी बहुत पुरानी हो चुकी है, एंड दिस नीड्स टू बी रिफॉर्म्ड टू मीट द चैलेंजेस ऑफ पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। प्री पोस्ट कोल्ड वॉर एरा है 1991 से पहले का, लेकिन 1991 के बाद जो नए चैलेंजेस आए हैं इंटरनेशनल सीन पर, उनको मीट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस अच्छी तरह से काम कर सके, तो उसमें क्या क्या डिमांड है एंड क्या रियलिटीज़ हैं, क्या सिचुएशन है। सिचुएशन जो है वो डिस्कस करेंगे। दैट सोवियत यूनियन वो कोलैप्स कर चुका है, अमेरिका ही अकेला स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बचा हुआ है। रिलेशनशिप बिटवीन अमेरिका एंड सोवियत यूनियन